Good morning, students. I hope you all will be fine. Students, today we start poetry section. Let us start poetry section. In poetry section, first I am telling to you, here are some poems due to COVID-19. Some of the poems, total poems are 10. In 10 poems, 3 poems had been removed from your syllabus. In these 3 poems, the first is La Belle Dame Sends Mercy. Next, Stopping by Woods. Stopping by Woods. And third poem is an elegy written in country churchyard. These 3 poems have been removed from the syllabus. Again, I am telling to you, first is an elegy written in country churchyard. Second is La Belle Dame Sends Mercy. And third is Stopping by Woods. On snowy evening. These 3 poems are separated from the syllabus due to COVID-19. यानी ये 3 poems जो है आपके सिलेबस से हटा दी गई है. आपको अब 7 poems की स्टडी करनी है. तो उन 7 poems में सबसे पहली poem है आपकी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी बॉटन. सर हेनरी बॉटन. There, from poetry section, 2 questions are asked. डियर, आपको बता दें, पोएट्री सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन. एक एक्सप्लेनेशन आएगी, यानी एक स्टैंजा या कुछ लाइंस दी होंगी, उसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. दूसरा क्वेश्चन आता है डियर, इसमें से सेंट्रल आइडिया. किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है. उसमें चॉइस भी दी होती है. देयर 3 points दी होंगी एंड 3 of them you have to write one central idea of them on one topic. यानी one topic, किसी एक टॉपिक पर आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं इसमें क्वेश्चन पेपर में, उनमें से एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है. ये 2 क्वेश्चन हैं. Dear, today let us start first poem. पोएट्री सेक्शन की जो फर्स्ट पोएम है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. सर हेनरी बॉटन इसके पोएट हैं. सर हेनरी बॉटन ने इस पोएम को कंपोज किया, लिखा है.
First, I am telling to you the summary of this poem. There, in this poem, the poet tells us the happy life. What are the important characteristics or qualities by which following a man can pass a good life, a happy life? In this poem, lot many qualities or characteristics are told by the poet to pass a happy life. If a man follows those characteristics or those qualities or those suggestions, definitely his life will be happy, and really he will be a happy man of the world. Dear, इस पोएम में कवि हेनरी पॉटर ने एक खुश जीवन की विशेषताओं के बारे में बताया कि खुश जीवन की क्या विशेषताएं होती हैं और खुशी जीवन को पास करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, किस तरह से वो खुश रह सकता है। तो कुछ ऐसी क्वालिटी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषताएं पोएट सर हेनरी वॉटन के द्वारा इस पोएम में डिस्क्राइब की गई हैं, सजेस्ट की गई हैं रीडर्स के लिए। निश्चित ही अगर कोई भी व्यक्ति इस वर्ल्ड में, इस संसार में उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एडॉप्ट करता है, अपनाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर वो चलता है तो निश्चित ही वो व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है, खुश नसीब व्यक्ति होता है और उसकी जो लाइफ है वो वास्तव में हैप्पी लाइफ होती है, एक खुश जीवन होता है। So this is the summary of the poem. Next, in this poem, some stanzas are given. कुछ stanzas इसमें दिए गए हैं। So now I start to read these stanzas and to explain. So dear, you all are suggested, open your book and look first stanza of the poem. First stanza of the poem. First stanza of the poem is, I am reading it. How happy is he born or town, that serveth not another's bill, whose armor is his honest thought and simple truth, his utmost skill. Once again I am reading line. How happy is he born or town, that serveth not another's bill, whose armor is honest thought and simple truth his utmost skill. How happy? How means कितना, happy means खुश, age means है, he means वह, born or town,
यानी वह व्यक्ति कितना सुखी है। जो बिल्कुल बॉर्न का मतलब जन्म लेने से, लेकिन यहाँ मीन्स स्वतंत्र, जिसका जीवन स्वतंत्र है। और आउट, जिसको शिक्षा दी गई है, जिसको शिक्षा दी गई है दैट सर्विस नॉट अनदर विल, दूसरों की इच्छाओं का गुलाम न होना। दैट मीन्स जो सर्विस मीन्स सेवा करता है, नॉट मीन्स नहीं, अनदर मीन्स दूसरों की, विल मीन्स इच्छाओं का। यानी वो व्यक्ति कितना खुश है जिसको ये शिक्षा दी गई है या जिसे सिखाया गया है दैट सर्विस नॉट अनदर विल, कि दूसरों की इच्छाओं का गुलाम न होना या दूसरे मनुष्यों का गुलाम न होना, उनकी इच्छाओं के अनुसार न चलना। Whose armor is his honest thought. Whose means जिसका, armor means होता है डियर द प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कवच जिसे कहते हैं। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी जिसका आर्मर उसके सत्य विचार होते हैं। मीन्स वह अपने बिहेवियर से ईमानदार होता है। एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल। और सिंपल मीन्स साधारण, ट्रूथ मीन्स सत्य या सच्चाई, हिज मीन्स उसका अटमोस्ट, लगभग स्किल मीन्स होता है एक्सपर्टनेस या हुनर या एबिलिटी, यानी सच्चाई उसका सबसे बड़ा, सच्चाई उसकी सबसे बड़ी एक्सपर्टनेस है, यानी इसकी निपुणता है, जिसके लिए वह सम्मान प्राप्त कर सकता है। यानी वो एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। ही डज नॉट एक्ट एज ऑफ अदर्स वांट। ट्रूथफुलनेस इज ग्रेटेस्ट क्वालिटी, यानी सच्चाई उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। उस क्वालिटी के लिए उसे ऑनर मिलता है, उसे सम्मान दिया जाता है। ड्यू टू सच क्वालिटीज, ऐसी क्वालिटीज रखने वाला व्यक्ति है, ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ, वो एक स्वतंत्र जीवन जीता है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ निगेटिविटी, और उसका जो जीवन है वो किसी भी तरह की निगेटिविटी से फ्री होता है। किसी तरह की कोई नकारात्मकता की सोच उसके जीवन में नहीं होती है। रियल में ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं का दास या गुलाम नहीं है, जिसका जीवन और जिसकी शिक्षा यानी दूसरों की इच्छा की दास या गुलाम नहीं है, और ऑनेस्ट विचार, सत्य विचार ही उसका कवच है, और साधारण सत्य ही उसकी निपुणता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में जीवन में सुखी व्यक्ति होता है, और उसकी जो लाइफ है वो सभी तरह की अफवाहों से दूर है। वो वास्तव में दुनिया का हैप्पी मैन यानी खुश व्यक्ति होता है।